Hello everyone, Jai Hind. I welcome you in this question paper analysis session for NDA 2024. Okay, so yes, we will be discussing the questions that was asked in NDA 2024 in general science. Okay, so yes, let's get started with the class. Before starting the class, let me tell you that yes, we do offer a variety of bundle courses for NDA, for CDS, for SSB interview, right? And also the test series, the mock test, right? For better concept clarity. So yes, you can enroll in these courses, and if you want to enroll, you can use this code of Warrior10 to avail 10% discount on all of the mentioned courses, right? So yes, let's talk about the marking scheme and weightage of the questions, right? Okay. So yes, the three sections for NDA, mathematics, English and GK. 120 questions of mathematics, total marks 300, okay, 2.5 marks for the correct one, and 0.83 marks will be deducted for the wrong answer. In English, 50 questions were asked, 200 marks, 4 for correct, and 1.33 will be it will be deducted for the wrong answers, right? Then for GK, 100 questions. In GK, total 400 marks. Correct answer 4 marks, okay, and wrong answer 1.33 will be deducted, okay. So yes, this is all about the marking scheme. Now let's have a look on the weightage of questions, okay. So as you can see that this is the number of questions that was asked in NDA 2024, okay. So we will going to talk about the general science, okay. So we will be discussing physics, chemistry and biology, okay. So as you can see in GS part, physics, chemistry and biology, 24 questions was asked from physics, 15 questions from chemistry and 12 questions from biology, okay. So this is all about the weightage of questions. Now let's have a look on the questions and let's see the answers, right? तो चलिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है that is LIGO experiment confirmed one of the predictions of, ठीक है. तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये किसके प्रिडिक्शन को कंफर्म कर रहा था? स्ट्रिंग थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो इसका करेक्ट आंसर डी है, दैट इज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ओके. So it matched the predictions of general relativity for the inward spiral and merger of a pair of black holes and subsequent ring down of the resulting single black hole. ठीक है? So yes, this was concerned with general theory of relativity. Next question. A block of mass 2 kg moving with the initial speed of 3 meter per second comes to rest on a rough horizontal surface after traveling a distance of 3 meter. Okay. The magnitude of the frictional force. तो फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा गया है, आपको मास दिया गया है, स्पीड दिया गया है और डिस्टेंस भी दिया गया है, ओके. तो देखिए आपको निकालना क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. यू विल गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस होल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर बाय डिस्टेंस, ठीक है. सो यस, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. m is given, v is given, distance is given, and then you will going to get the force of friction, ठीक है. Next question, which one of the following is primarily responsible for conduction of current in a metal? Okay, तो metal में जो current flow करता है, okay, तो इसमें से क्या है that is responsible for the conduction of current? So the correct answer here is B, that is free electrons. ठीक है, हमें पता है जो free electrons जिसमें होते हैं that are the conductors, okay. So free electron are responsible for the current in the conductors, right. So free electrons क्या होते हैं, valence shell electron होते हैं जो outermost shell में होते हैं, ठीक है, and having the weaker force of attraction between them and the nucleus, so they are free to move, okay. nucleus और जो outermost shell में जो electron होते हैं, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, उनमें काफी डिस्टेंस हो जाता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है, राइट. So yes, they are free, okay, they have this weaker force of attraction, so they are free to move. और जो free electrons होते हैं वो current conduction में help करते हैं, okay, in the metal or conductor, okay. Next question, which of the following statements regarding humidity is or are correct, okay.
सो ह्यूमिडिटी के बारे में पूछा गया है, क्या करेक्ट है? इट इज अ रेशियो बिटवीन एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर and the maximum amount it can hold at a given temperature. When the relative humidity is high, more water evaporates from the skin. Higher the air temperature, lower the relative humidity of the air. ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी है, दैट इज 1 and 3. ओके, जब हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं आपको पता है कि इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, राइट? ये हमने ट्रांसपिरेशन में भी पढ़ा है. And it is a ratio between the actual amount of water vapor, जो actual amount water vapor present है in the atmosphere, upon the maximum amount it can hold at a given temperature. So this is also correct, right? Next question. Leaves of most plants appear green because the chlorophyll present in it absorbs red and blue light while reflecting green light. Absorbs green light only, absorbs green light while reflecting red and blue light, reflects red light and absorbs blue and green light. Yes. तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, आपने ये फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि कोई भी चीज है अगर वो एक पर्टिकुलर कलर की दिखती है, इसका मतलब दैट इज रिफ्लेक्टिंग दैट पर्टिकुलर कलर. ओके, कोई चीज अगर ग्रीन दिख रही है, इट मीन्स इट इज अब्सॉर्बिंग ऑल अदर वेवलेंथ्स एंड रिफ्लेक्टिंग ग्रीन. ठीक है, ऐसा ही लीव्स में होता है. लीव्स इसलिए ग्रीन दिखती हैं बिकॉज ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे, बिकॉज दे आर गोइंग टू अब्सॉर्ब रेड एंड ब्लू लाइट, और वो क्या रिफ्लेक्ट करेंगी? ग्रीन लाइट. ठीक है, तो जो कलर रिफ्लेक्ट करते हैं उसी कलर का वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन मोस्ट प्रोकैरियोट्स द क्रोमोसोम नंबर इज. यस, प्रोकैरियोट्स में, मोस्ट प्रोकैरियोट्स में पूछा गया है. ठीक है, राइट? तो मोस्ट प्रोकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम नंबर है, ओके, इज इट 4, 3, 2 और 1? तो इसमें करेक्ट आंसर आपका, ओके, सो जस्ट मेक दिस करेक्शन, इट शुड बी डी. ठीक है, यहाँ डी होगा, ए होता है. ठीक है, सॉरी 1 होता है. ओके, सो मोस्ट प्रोकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 1 होता है. देखिए, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स जस्ट हैव 1 क्रोमोसोम. ओके, राइट? सो मेक दिस करेक्शन, इट शुड बी डी एज 1. ठीक है, ऑलराइट. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. बैक्टीरियल डीएनए इज रेफर्ड टू एज नेकेड बिकॉज इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ. ठीक है, तो बैक्टीरियल डीएनए को हम नेकेड डीएनए क्यों कहते हैं? वाई? बिकॉज इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ व्हाट? एनी स्कैफोल्ड, प्रोटीन्स, राइबोजाइम और प्लास्मिड. तो इसमें करेक्ट आंसर प्रोटीन है. वो कोई प्रोटीन के साथ एसोसिएट नहीं होता, सो दिस इज द रीजन इट इज नोन एज नेकेड डीएनए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन अमंग द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ फॉरेन एंटीजन? कौन सी सेल है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट द फॉरेन एंटीजन? तो करेक्ट आंसर इसका ए है, दैट इज लिम्फोसाइट. ठीक है, तो आपको पता है जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, ये बी लिम्फोसाइट होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, 2 टाइप के भी लिम्फोसाइट्स होते हैं, और इनका काम होता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन. ठीक है, राइट? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. If a block P as shown in the figure below were to be at rest, what should be the magnitude of force B? ठीक है, एक ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अब इसको रेस्ट पे रहना है. कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब रहेगा? जब जितनी फोर्सेस लेफ्ट साइड हैं उतनी ही फोर्सेस राइट साइड होती हैं. तो ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इधर है 10 और ये है 15. टोटल कितनी फोर्स लेफ्ट साइड लग रही है? 25 न्यूटन की. ठीक है, इधर आपको 2 न्यूटन दिया हुआ है, इधर आपको 15 न्यूटन दिया हुआ है और एक एफ दिया है. ठीक है, तो आपको इसका मैग्नीट्यूड बताना है, इसकी क्या वैल्यू होगी. तो अगर इधर 25 है तो हमें इधर भी 25 करना है. क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे. ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है वर टू बी एट रेस्ट. ये मूव नहीं करेगा. तो मूव कब नहीं करता है? जितनी फोर्स लेफ्ट साइड है उतनी ही फोर्स राइट साइड जब होती है. ठीक है, तो बस यहाँ पे देखिए टोटल कितना हो रहा है? 15 and 2 17 हो रहा है. ओके, तो 25 में से जब आप 17 माइनस करेंगे यू विल गोइंग टू गेट 8 न्यूटन. ठीक है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 8 न्यूटन. यहाँ पे अगर आप 8 कर देंगे तो ये भी पूरा 25 हो गया और ये इधर 25 है. ओके, दोनों तरफ फोर्स बराबर है और ब्लॉक मूव नहीं करेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट बिलोंग टू न्यूक्लियर रिएक्टर. ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर का पार्ट नहीं है और डज नॉट बिलोंग टू न्यूक्लियर रिएक्टर?
a turbine, a heat exchanger, a mechanism to reduce carbon dioxide emission, a reaction chamber. ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर सी है, a mechanism to reduce CO2 emission. ये इसका पार्ट नहीं है न्यूक्लियर रिएक्टर का. ठीक है, तो देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन चेम्बर होता है, कंट्रोल रॉड होता है, मॉडरेटर है, कूलेंट है, हीट एक्सचेंजर है, टर्बाइन है, जनरेटर है. ओके, सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ माइक्रोस्कोप मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज, a convex and a concave lens, two concave lenses, a convex lens and a convex mirror. Yes. तो जो माइक्रोस्कोप है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है? करेक्ट आंसर ए है इसमें, टू कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस होती हैं और उसी का वो कॉम्बिनेशन होता है. All right. Next, which of the following statements with regard to the phenomena of the primary rainbow formation by water droplets is or are correct? It involves refraction and one internal reflection of light. It involves refraction of sunlight only. It is formed as the inner bow. It may involve more than one internal reflection as well as refraction of sunlight. ठीक है, तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर आपका बी होगा, इसका मतलब 1 and 3 विल बी करेक्ट. ओके, तो ये जो प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन होता है उसमें रिफ्रैक्शन होता है और एक इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है, राइट. तो रिफ्रैक्शन देखिए 2 बार होता है और रिफ्लेक्शन 1 बार होता है, एंड दिस इज हाउ द प्राइमरी रेनबो गेट्स फॉर्म्ड. ओके, एंड इट इज फॉर्म्ड एज द इनर बो. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, सो वी आर गोइंग टू गो विद बी ऑप्शन 1 and 3. All right, next, which one of the following scientists mentioned that an electron in an atom could revolve in certain stable orbits without the emission of radiant energy? तो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, एटम में जो रहता है इलेक्ट्रॉन, ओके, ये सर्टन स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी. सो इट वाज स्टेटेड और मेंशन्ड बाय नील्स बोर. ठीक है, नील्स बोर ने ये बात बोली थी. चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनिमल सेल मेम्ब्रेन इज करेक्ट? तो एनिमल सेल मेम्ब्रेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? दे आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स ओनली, दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स ओनली, दे आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स ओनली, दे आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डी. ओके, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, इसमें देखिए फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट भी और कोलेस्ट्रॉल भी. ठीक है, राइट. सो वी आर गोइंग टू गो विथ डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप? इसमें से कौन सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पार्ट नहीं है? मिरर, स्टेज, क्लिप और रेटिना. ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर डी है, रेटिना. ओके, देखिए मिरर है, स्टेज है, क्लिप्स है, ये एसेंशियल कंपोनेंट है. रेटिना इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन माइक्रोस्कोप्स फंक्शन. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी? इसमें से करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है. सो दिस वी हैव बीन डिस्कसिंग इन क्लास ऑल द टाइम. ठीक है, जब भी हम पढ़ते हैं कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम, ओके, सो वी आर डिस्कसिंग दिस. जब हमने सेल ऑर्गेनल पढ़ा था तो भी हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था, इस पर्टिकुलर जो हायरार्की होती है. राइट. सो फर्स्ट इज प्रोटीन. ओके, आपको पता है सेल, कई सारे सेल मिलके टिश्यू, कई सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन और फिर वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ओके, तो यहाँ पे देखिए प्रोटीन है, प्रोटीन मिलके टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अगर ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे नहीं है तो फाइनली ऑर्गेनिज्म, बिकॉज यहाँ ऑर्गन सिस्टम क्या बना रहा है? इट इज मेकिंग ऑर्गेनिज्म. फिफ्थ वन. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी. ओके, प्रोटीन, देन टिश्यू, ऑर्गन. अगर ऑर्गन सिस्टम यहाँ नहीं मेंशन है तो उसके बाद ऑर्गेनिज्म आता है, तो आप वो मार्क करेंगे. राइट. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग सेल टाइप्स. सेल टाइप्स आपके सामने दिए हुए हैं, जैसे मोनोसाइट है, कॉन्ड्रोसाइट है, बेसोफिल है, लिम्फोसाइट है. ओके, तो आपको बताना है हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू एनिमल सेल टाइप्स. ठीक है, इसमें से कितनी है जो एनिमल सेल टाइप को बिलोंग करती हैं. ओके, सो करेक्ट आंसर डी है, ऑल 4 बिलोंग टू द एनिमल सेल टाइप. राइट. ओके,
कॉन्ड्रोसाइट क्या होता है? कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल है. ओके, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सब आपको पता है कि दे आर ऑल द पार्ट ऑफ द WBC. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ पैनक्रियास? पैनक्रियास का क्या रोल होता है? सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट्स टू ब्रेक अप लिपिड ड्रॉपलेट्स, स्टोरेज एंड रेगुलेटेड रिलीज ऑफ बाइल, secretion of lipase, amylase and protease, neutralizing stomach acids. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर विल बी सी. क्योंकि देखिए पैनक्रियाटिक जूस में हमने पढ़ा था लाइपेज होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट, अमाइलेज होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीएज होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. DNA replication takes place when chromatin is opened up. Chromatin organizes itself into rod-shaped chromosomes before cell division. Both prokaryotes and eukaryotes have the same process for cell division. तो इसमें करेक्ट आंसर होगा B 1 and 2. ठीक है, यहाँ पे 1 और 2. ठीक है, देखिए जब क्रोमैटिन कंडेंस होता है, ओके, यू कैन सी दैट यूकैरियोटिक DNA is not just one long strand. Okay, it is going to be broken up into separate linear pieces जिसे क्रोमोसोम कहते हैं. ओके, तो आपको पता है जैसे DNA है, ठीक है, वो कंडेंस हुआ, क्रोमैटिन बना, क्रोमैटिन फर्दर कंडेंस होके क्रोमोसोम बनता है. ओके, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है, राइट. थर्ड वाइट इज नॉट करेक्ट बिकॉज प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सेल डिवीजन का सेम प्रोसेस नहीं होता है. आपको भी पता है, ओके, कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें बाइनरी फिजन होता है और जो यूकैरियोट्स हैं उसमें माइटोसिस और मियोसिस होता है, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स. ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट वन. एस्केप स्पीड फ्रॉम अर्थ इज क्लोज टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड on another planet whose radius is half of Earth's radius and whose mass density is 4 times that of the Earth. Okay, so the escape speed in kilometer per second will be close to 11.2, 15.8, 5.6 और 7.9. तो इसका आंसर 11.2 होगा. Why? Because the escape velocity does not depend on mass or density or total mass of the planet. ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट, राइट. ओके, सो यस, दिस इज ऑल अबाउट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू साउंड वेव्स इन फ्लूइड? ओके, तो इसमें से कौन सा है जो कि साउंड वेव के लिए एप्लीकेबल नहीं है? दे ट्रांसपोर्ट एनर्जी, दे नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, दे आर ट्रांसवर्स, दे ट्रैवल फास्टर इन लिक्विड्स दैन इन गैसेस. ठीक है, तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी होगा. क्यों? क्योंकि जो साउंड वेव्स होते हैं वो ट्रांसवर्स नहीं होते, वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं. ठीक है, दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, ओके, नॉट दी ट्रांसवर्स. तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया. दिस इज नॉट गोइंग टू बी अप्लाइड टू द साउंड वेव्स. ठीक है, ऑल राइट. सो येस, लेट मी टेल यू once again about the course, right? So yes, for NDA exam online coaching 2024, so yes, we have this course available and everything will be covered in the course from live classes to in-depth lectures, study notes, current affairs, defense current affairs and mock test. Okay, so you can enroll in these courses. For SSB interview also, there is a course available that includes everything from live classes to the mock test, right? Alright, next question. Which one of the following statement regarding simple pendulum is correct? Simple pendulum has a time period independent of amplitude. तो आपके सामने 4 options हैं. Only for small amplitudes because then the net force on its bob is independent of its displacement. For any amplitude because the net force on the bob is always proportional to its displacement. For any amplitude because the net force on the bob is independent of its displacement. Or D, only for small amplitudes because then the net force on its bob is proportional to its displacement. तो correct answer होगा B, for any amplitude because the net force on the bob is always proportional to its displacement. ठीक है. Next question. Which one of the following about different frictional force is correct? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर देखिए सी है. सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, ओके, फिर होती है काइनेटिक फ्रिक्शन की एंड द लार्जेस्ट ऑफ ऑल विल बी रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है,
फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शनल एक लिमिटिंग फोर्स है, ठीक है। तो जब बॉडी रेस्ट पे है उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, वो इतना ज्यादा है कि द बॉडी इज नॉट मूविंग। काइनेटिक में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा कम हुआ तो बॉडी मूव करने लगी। रोलिंग फ्रिक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और बढ़ा तो बॉडी रोल करने लगी, ठीक है। सो यस, द स्टैटिक विल बी मैक्सिमम, देन काइनेटिक, एंड द लीस्ट विल बी रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन. There are two statements given, okay. Statement 1 is infrared waves are called heat waves and statement 2 is water molecules readily absorb infrared waves, ठीक है। तो इसमें correct answer A है. Why? They are referred to as heat waves because they are readily absorbed by water molecules in most material which increases their thermal motion, so they heat up the material, ठीक है। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि the first one is the second is correctly explaining the first one also, ठीक है। दे आर रिलेटेड, ओके, दोनों करेक्ट है एंड द सेकेंड वन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट वन, सो वी आर गोइंग टू गो विथ ए, ओके। इंफ्रारेड वेव को हीट वेव कहते हैं, करेक्ट है, और वाटर मॉलिक्यूल्स अब्सॉर्ब भी करते हैं इंफ्रारेड वेव को, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। एंड दे आर रिलेटेड बिकॉज हीट वेव दे आर रेडिली अब्सॉर्ब्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके, राइट। हीट वेव्स मतलब इंफ्रारेड वेव्स, water molecules इन्हें absorb करते हैं, right, and increases their thermal motion, so they heat up the material. Next question. If the current through an electrical machine running on direct current is 15 ampere and machine runs for 10 minutes, the charge that passes through the machine during this time is, ठीक है, आपको क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज टाइम इंटू करंट, टाइम इंटू करंट इज चार्ज, ठीक है। करंट आपको 15 एम्पियर दिया हुआ है, टाइम यहाँ पे 10 मिनट्स है, इसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये 60, ठीक है। तो 60 10 मिनट्स और इंटू 60 हो गया 600 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 600 कर दिया। अब चार्ज हमें निकालना है, तो 15 6 90 एंड 2 0, तो 9000 कूलम विल बी आवर आंसर, ठीक है। सो यस, चार्ज per unit time is current, ठीक है। charge by time is current, as you all know, charge upon time is current, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चार्ज ही निकालना है, तो आप करंट इंटू टाइम कर देंगे, ठीक है। करंट आपको क्वेश्चन में दिया है, टाइम आपको सेकंड में करना है, तो 10 मिनट को सेकंड में कैसे करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 600, ये हो गया 15, आंसर विल बी 9000 कूलम, राइट। Next question, which one of the following is the best shape of a solid metal rod to form the top end of a lightning conductor? तो इसका करेक्ट आंसर A है, ठीक है। So this, इसका ऐसा शेप है that will going to help in forming the top end of lightning conductor, ठीक है। lightning conductor क्या करता है? It will going to absorb all the charge, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये ऐसा कुछ शेप है तो इससे क्या होगा? all charge will be concentrated here, right, okay. Next question, which of the following forces are fundamental in nature? Gravitational force, electromagnetic forces, strong and weak nuclear forces. तो आपको बताना है कौन से इसमें से fundamental forces हैं। करेक्ट आंसर इसका D है, ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ऑल ऑफ देम आर द फंडामेंटल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा दैट हैज अ लेंस विथ fixed focal length and fixed aperture size, variable focal length and fixed aperture size, fixed focal length and variable aperture size, और variable focal length and variable aperture size, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर डी है, ओके। जो ह्यूमन आई है उसमें फोकल लेंथ भी वेरिएबल होता है और जो अपर्चर साइज है वो भी वेरिएबल होता है, ठीक है। All right, next question, the relative atomic mass of boron, ठीक है। बोरॉन अपने ये दो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 10 and 11, ओके। तो जो अटोमिक मास है, रिलेटिव अटोमिक मास, दैट इज 10.81, ओके। सो आपको बताना है व्हाट विल बी द अबंडेंस ऑफ बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा, ओके। तो बोरॉन के दो आइसोटोप होते हैं, ओके। एक तो दिस B10, एक B11, तो इनका जो अबंडेंस है इट इज 20 and 80, ठीक है। इट इज 20 and 80. All right, so just a minute, there is one thing that needs to be corrected, okay. It should be A, just make this correction,
ठीक है, क्योंकि देखिए जो 10B है वो पहले आपसे पूछा गया है, 10B की बात पहले कही गई है, 11B की बाद में कही गई है। सो करेक्ट आंसर विल बी ए, क्योंकि ये जो 20% है, 19% है, दिस इज फॉर 10B, ठीक है, और ये जो 80% है दिस इज फॉर 11B, ठीक है। सो प्लीज मेक दिस करेक्शन। सबसे पहले B10 पूछा गया है, ठीक है, तो हम B10 मार्क करेंगे। B10 20% है, ठीक है, तो इट इज क्लोज टू दिस 19 एंड यहाँ पे ये दिस B11 इज 80, तो ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सो यू कैन जस्ट मेक दिस करेक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ओके। तो पोर्टलैंड सीमेंट का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? सिलिका, अलुमिना एंड लाइम। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सिलिका, अलुमिना एंड लाइम, राइट। Next, litmus, a well-known acid-base indicator, is derived from fungi, lichens, bacteria और termite. तो जो litmus है ये कहाँ से derive हुआ है? This we all know, lichens. ठीक है, right? So yes, it is a well-known acid-base indicator. ठीक है, acid base को indicate करने में help करता है, identify करने में help करता है. What is the oxidation state of vanadium in V2O5? V2O5 में vanadium की oxidation state क्या है? So it is +5. ठीक है? So we have already discussed how to find the oxidation state, right? Okay. So yes. Next, there are these two lists. Okay, list 1 and list 2. Right? Allotrope is one of the very important topic. तो देखिए उससे question आया हुआ है. राइट, अलोट्रोप दिए हैं कार्बन की, उनकी प्रॉपर्टी से मैच करना है। तो आपको पता है जहां भी हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस की बात होती है वो होता है डायमंड, ठीक है। तो हम किस पे जाएंगे? बी का 2। सो दिस इज बी का 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2, राइट। ग्रेफाइट जो होता है सॉफ्ट एंड स्लिपरी मटेरियल है, तो ए का 4। तो ए का 4 किस में है? ए ऑप्शन में। सो वी आर गोइंग टू गो विथ ए, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे ग्रेफाइट हो गया सॉफ्ट एंड स्लिपरी मटेरियल, डायमंड है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, fullerene is very light and strong material and graphene is thinnest and strongest material, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, water gas is a mixture of, okay, water gas किसका मिक्सचर है? this is carbon monoxide and hydrogen, ठीक है। नेक्स्ट, human body works in the pH range of, so slightly alkaline, that is 7 to 7.8, ठीक है, इस पे human body work करती है at this pH. Next, which one of the following statement with reference to the property of water is not correct? ठीक है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है. The specific heat of water is abnormally high. Latent heat of fusion of water is very low. Density of water is higher than ice. Pure water is a non-conductor of electricity. ठीक है, इसमें B ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है and that will be our answer. ठीक है, आपको पता है जो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की वो हाई होती है, अनयूजुअली हाई होती है. पहला स्टेटमेंट तो ठीक है. सी, डेंसिटी ऑफ वाटर भी ज्यादा होता है आइस से. ओके, और प्योर वाटर जो होता है इट विल नॉट गोइंग टू हैव एनी फ्री आयंस, राइट. ओके, सो इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो डी भी करेक्ट है. ओके, तो ओनली द इनकरेक्ट वन इज बी एंड दैट विल बी आवर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज अ स्वीट एंड फ्रूटी स्मेल. ठीक है, तो ये जो स्वीट और फ्रूटी स्मेल किसकी होती है? ईस्टर्स की होती है. किसकी होती है? ईस्टर्स. ठीक है, तो इसमें इथाइल एसीटेट क्या है? इट इज एन ईस्टर. ओके, दिस इज एन ईस्टर. देखिए, एसिटोफिनोन कीटोन है, एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है. ठीक है, इथाइल अल्कोहल अल्कोहल है. ठीक है, राइट. तो ये इथाइल एसीटेट इट कम्स अंडर ईस्टर, राइट. नेक्स्ट, what is the coordination number of sodium ion and chloride ion in NaCl lattice? Okay, तो इसका करेक्ट आंसर सी है. ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक सोडियम 6 क्लोराइड आयन से जुड़ा होता है. ठीक है, और जो ये क्लोरीन है, जो क्लोराइड आयन है, ये नेक्स्ट 6 सोडियम से जुड़ा होता है. ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट इज 6 and 6. ओके, चलिए नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द नेटल लीफ हेयर्स दैट कॉजेज बर्निंग पेन. यस, सो दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है मिथेनोइक एसिड. द अदर नेम फॉर इट इज फॉर्मिक एसिड. ठीक है, तो आंट के स्टिंग में या नेटल लीव्स में, ठीक है,
बी के स्टिंग में दिस फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड इज प्रेजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. नेक्स्ट, सोप विथ वाटर फॉर्म्स. तो सोप विथ वाटर कैसा क्रिस्टल बनाता है? लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल. ठीक है, इट इज लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्पोजिशन ऑफ बोरेक्स? सोडियम बोरॉन मैग्नीशियम हाइड्रोजन और सोडियम बोरॉन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, पोटेशियम बोरॉन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और सोडियम बोरॉन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि सोडियम, जब हम बोरेक्स की बात करते हैं उसमें सोडियम और बोरॉन है. ठीक है, राइट. उसमें पोटेशियम तो नहीं होता है, उसमें मैग्नीशियम नहीं होता है. ठीक है, नाइट्रोजन भी नहीं होता है. सो वी आर लेफ्ट विथ बी. ओके, सोडियम, बोरॉन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, these four are present in borax, right? So this is the last question. Which one among the following oxides has the highest melting point? ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि किसी का अगर हाई बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, तो इसीलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड में का भी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इसलिए हाई है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एटम इन द क्रिस्टल लैटिस. ठीक है, so correct answer will be B here, right? So yes, this is the end of the class. Before ending the class, let me remind you again about the courses. Okay, so NDA online course is there. Okay, live classes to daily defense current affairs. Okay, and mock test will be covered in this particular course. Similarly, for SSB interview also there is this course available. Apart from this, you can enroll in other courses also for CDS, Territorial Army and FCAT. And also we do offer the mock test for gaining the benefit out of, or for better concept clarity, right? So yes, if you want to enroll in these courses, don't forget to use this code of Warrior10 so that you can avail 10% discount on all of the mentioned courses, right? So yes, this was all about the general science questions that was asked in NDA 2024. Okay, so let's end the class here. Thank you so much everyone for joining in. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.